आप ये बोल रहे हो 4 साल में आपने 1 करोड़ से 20 करोड़ कर दिया टर्नओवर? हाँ, पहुंचा दिया सर। और ये 20 करोड़ भी शायद इस साल 4 गुना हुआ है हमारा। पिछले साल तक हमारा 5 करोड़ था, इस साल 4 गुना किया हमने। इस साल ऐसा क्या कर दिया आपने? सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस, वेरी नाइस। मैं बताता हूँ सर, जो आपने भी टास्क टेम्पलेट करके जो एक फीचर ऐड किया है, उससे बहुत फायदा होगा, क्योंकि हर एम्प्लॉय ऐसा तो नहीं है कि अलग रोल के लिए आएगा। जब आप कंपनी बड़ी करोगे तो एक डिपार्टमेंट के अंदर एक ही टाइप के रोल के बहुत सारे एम्प्लॉयज आएंगे। तो अब एक एक को आप इंडिविजुअली टास्क असाइन करो, उसकी जगह आपने नंबर फिगर रखे कि भाई ये टेम्पलेट आईडी है, ये टेम्पलेट आईडी है, ये 20 टेम्पलेट आईडी है, ये इस रोल के लिए असाइंड है, तो वो जैसे ही ज्वाइन करेगा उसको 20 टेम्पलेट आईडी असाइन कर दो। Hi everyone, welcome to Achiever Club interview. Today we have Piyush Agrawal with us. He has been an avid user of Task Delegation app, and last month in his company more than 7,000 tasks were completed. I wanted to know on what does he do? What is his company? And I got to know that he is founder of a company called Khatu Sham Creations, and the brand is called KCPC. And they are an e-commerce brand, and they are into women ethnic wear. And I was wondering that as an entrepreneur, who is Piyush? What does he do? How he has built his team and how he has grown his business to into an e-commerce venture. So आज हम सुनते हैं पीयूष जी से इनकी स्टोरी. And Piyush, welcome to Achiever Club interview. Thank you so much for the introduction, and I'm really happy to be here with you. Awesome. So पीयूष जी अपने बारे में बताइए. Where are you based in? अपनी सिटी बताइए पहले, मतलब. Yeah. Tell us. So we are from Sikar, Rajasthan. It is a small town which is situated just beside Jaipur. This is basically a holy city, and many people come here and visit the places. Or this is also origin of Bandhani. This is a traditional art which is done on the products, like sarees, dupattas, and all. Very nice. कितनी बड़ी टीम है आपकी? कितने एम्प्लॉयज हैं आपके पास? We have around 100 people in our team, and more than 1,000 artisans are there who are working for us actively. वेरी नाइस, वेरी Yes. नाइस. और आपकी कंपनी में अभी ई कॉमर्स ब्रांड है आपका, राइट? We are D2C brand. ओके, क्या व्हाट्स द टर्नओवर ऑफ द कंपनी करंटली? It is around 20 CR in a year, which we are doing in the current financial year. और कितना बड़ा ड्रीम, कितना है, कितना बड़ा ब्रांड बनाना है? ड्रीम एज सच मैं नहीं कहूँगा मेरा कोई ड्रीम है क्या, क्योंकि ड्रीम्स को मैं मानता हूँ कि पूरे होते हैं या नहीं होते हैं मेरे को पता नहीं है ना। बट मेरे को ये पता है कि आज जो मैंने किया है ना, वो कल से बेहतर होना चाहिए। वेरी और नाइस. जो हमने पिछले पिछले जो टाइम पर हमने किया था, उसको हर हर साल हम यही टारगेट लेते हैं कि 3 गुना तक लेकर के जाना है हमको। तो इफ इन दिस फाइनेंशियल ईयर वी आर डूइंग 20, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर वी आर टारगेटिंग फॉर 60, एंड द नेक्स्ट इज 180. सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। एक बार ये जानते हैं आपने बिजनेस कब शुरू किया, और जब शुरू किया था तब कितना टर्नओवर था, और 20 सीआर पे कैसे पहुंच गए आप? तो उसके थोड़े सीक्रेट्स बताइए. I'm a chartered accountant by profession, and I was doing a job in the corporate company G Entertainment Television Limited, GTV. So from there I switched to my hometown, and I came here. I found that the major role which Bandhani is playing in the uh, branded stores like Tanera and this many other fashion designers are using this Bandhani. So I was quite curious about the thing, and also I found that my family members are already doing this business since last 50 years. This is the Right. third generation of my family who are into this business. When I came here, I found that what we were doing, we were simply doing wholesale business. In wholesale, what we do, we simply send the products to bigger merchants in the big cities like Jaipur and Delhi and Mumbai. हिंदी हिंदी में बात करते हैं. ओके ओके, थैंक यू थैंक यू. सो हम लोग क्या करते थे, हम लोग होलसेल के अंदर हमारे जो बड़े व्यापारी होते थे, जयपुर हुआ, दिल्ली हुआ, सूरत हुआ, इन व्यापारियों को माल दिया करते थे. और जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने ये चीज़ देखी थी कि भाई ठीक है, अपना बिजनेस तो चल ही रहा है, बट मेरे को एज ए सीए कुछ क्यूरियोसिटी रहती थी कि भाई हमारे बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। आपने अपने इतने दिन तो लाला जी वाला काम चला लिया, अब आगे आप कैसे लेकर के जाओगे। तो फिर उस चीज को जब हमने देखा, उस चीज को हमने नोट डाउन किया, तो मैंने पाया कि भाई बहुत सारे लूप होल्स जो हमने कंटिन्यूअसली छोड़ रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक होलसेलर को 10 लाख रुपए का जो क्रेडिट दे रखी है, तो वो क्रेडिट हर साल की साल यूज करे जा रहा है, और उसका वो जो 10 लाख रुपया मेन अमाउंट है, वो कभी भी उससे रिकवर नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि वो 10 लाख रुपए आपको पेमेंट तब करेगा जब आप 15 लाख रुपए का उसको माल भेज चुके होगे। फिर वो साइकिल कंटिन्यूअसली रिपीट होता रहेगा। दूसरी चीज ये होती थी कि 6-6 महीने तक ये क्रेडिट अमाउंट चलता था, मतलब 6 महीने से आपको पेमेंट वापस मिलता है।
कई बार कुछ सेलर्स हैं वो भाग जाते हैं और आपका पैसा डूब जाता है। कभी कभी आपको ये भी मिलता है कि आपने प्रोडक्ट भेजा और वो 2-3 महीने बाद में सेलर बोला कि नहीं मेरे को तो आप महंगा दे रहे हो, उठा के आपको वापस प्रोडक्ट कर देगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स काफी हमारी कंपनी में भी चल रही थी। साथ ही साथ मेरे को जीटीवी का नॉलेज था, मेरे को आइडिया था कि भाई कैसे आज कंटेंट क्रिएशन के थ्रू इंडिया में इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ है। तो व्हाट वी डिड, वी स्टार्टेड क्रिएटिंग स्मॉल कंटेंट फॉर द प्रोडक्ट्स विच वी वर मेकिंग। तो किस तो पे बना रहे थे, इंस्टाग्राम हम पे, लोगों ने यूट्यूब पे, कहाँ इंस्टाग्राम, पे? फेसबुक, यूट्यूब ये सब चालू किया था। हमारे किस पेज तरीके है अराउंड से? 2.8 मिलियन फॉलोवर्स हैं हमारे, अच्छा। एक्टिव फॉलोवर्स हैं। और हम लोग जैसे प्राउडली कहते हैं कि हमारा ऑर्गेनिक रीच है, हम लोगों का 1 रुपए का भी एड स्पेंड अभी तक नहीं हो रखा वहाँ पे। ओवरऑल इसका क्या सीक्रेट था कि आप प्रोडक्ट के यूनिक वीडियोस डाल रहे थे, या फिर मतलब क्या चीज इंस्टाग्राम पे हिट हो गई? सर हम लोग ओरिजिनल थे, हम लोगों ने किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं करी। हम जैसे थे हमने वैसे खुद को प्रेजेंट किया। हमारे साथ ऐसा था नहीं कि हमको कुछ आर्टिफिशियल दिखाना था। हमारे से गलतियां होती थी तो हम पब्लिकली एक्सेप्ट करते थे कि साहब गलती हो गई। और ये ई कॉमर्स का आइडिया कब आया आपको कि ई कॉमर्स शुरू करना? सर ई कॉमर्स का आइडिया वैसे तो देखिए, मतलब सुन तो रखा ही था ई कॉमर्स के बारे में। बाकी बैठे बैठे कई बार ऐसा होता था कि भाई अमेजन पे भी लिस्टिंग करते हैं लोग, अमेजन पे भी लिस्टिंग करी थी, इंडिया मार्ट पे भी लोग लिस्टिंग करते हैं, वहां पे भी लिस्टिंग्स वगैरह करी थी। तो ऐसे करते करते आइडिया लगने लग गया था कि हाँ भाई ये भी एक ऑनलाइन का एक अच्छा खासा मार्केट है। कौन से साल की बात है ये? ये 2019 के लमसम की है सर। 90, तो तब आपने ई कॉमर्स शुरू कर दिया। हाँ। और तब उस टाइम पे कितना टर्नओवर था कंपनी का जब ई कॉमर्स शुरू किया था? टाइम पर शायद हो सकता है सर 1 करोड़ के अंदर ही हो। आप ये बोल रहे हो 4 साल में आपने 1 करोड़ से 20 करोड़ कर दिया टर्नओवर? हाँ पहुंचा दिया सर। और ये 20 करोड़ भी शायद इस साल 4 गुना हुआ है हमारा। पिछले साल तक हमारा 5 करोड़ था, इस साल 4 गुना किया है हमने। इस साल ऐसा क्या कर दिया आपने? सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस, वेरी नाइस। अच्छा, हाउ डिड यू, व्हेन डिड यू गेट इन टच विद अस? मतलब आपने हमारा ऐड देखा था, क्या देखा था? आपके बारे में सर हमने सुना था। आपके बारे में ऐसा था कि भाई मेरे को आइडिया था केवल किशन जी, मतलब आपके वीडियोस आते रहते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। तो मेरे को थोड़ा सा नोटिस में था। फिर उसके बाद में मैंने मेरी टीम में जो मेरा पार्थ है उनको मैंने कह रखा था कि भाई आप कुछ इस टाइप के टूल्स ढूंढो जो ऑटोमेट बिजनेस में आपकी हेल्प कर सकें। तो फिर उन्होंने मेरे को 4-5 नाम रिकमेंड किए थे, तो उसमें आपका भी नाम था। व्हेन आई सो योर नेम आई वॉज कॉन्फिडेंट कि यस इनके पास से कुछ डिफरेंट मेरे को मिल सकता है। और उसी हिसाब से फिर हमने आपका जो टूल था उसका एक बेसिक डेमो लिया था। बेसिक डेमो लेने के बाद हमको लग गया था कि भाई ठीक है ये रिक्वायरमेंट तो फुलफिल कर देगा। एंड इन अगस्त आई बिलीव द इंडिपेंडेंस डे ऑफर वाज देयर। तो उस वक्त हमने आपका एक मतलब यूज़र प्लान लिया था, बेसिक यूज़र प्लान। फिर हमको उसमें ऑटोमेशन पे लेके जाना था, तो हमारे पास ऑलरेडी सर KRAs वगैरह ऑलरेडी रहते हैं हमारे पास। तो हमने ओके। वहाँ से उठा के उसमें पुट कर दिए कि भाई ठीक है अब अपन गूगल शीट की जगह इसके थ्रू अपन करके देखते हैं कुछ ना कुछ। तो जब करके देखा तो यस द एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। पीपल वर फॉलोइंग द टास्क एक्टिवली। और जो नॉन फॉलोअर्स थे उनका भी आइडिया लगा कि भाई ये क्या चीज़ को स्किप कर रहे हैं, तो फिर उनको भी बैठ करके ट्रेनिंग दी गई। कई बार कंपल्सन किया कि भाई आपको बढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज द एप्रिसिएशन विल नॉट बी डन। जो आपका रेमुनरेशन हाइक होता है हर हर 6 महीने से, तो उसको हम लोग नहीं करेंगे। तो फिर वो थोड़ा सा जब उनको कंपलसरी किया तो फिर उन्होंने एक्टिवली फॉलो करना शुरू कर दिया। और मैं सबसे बढ़िया, यदि आप बोलो कि सर आपको सबसे बढ़िया फायदा क्या हुआ, तो मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा, कई चीजें मैं भी फॉलोअप लेने से भूल जाता हूँ। वो फॉलोअप्स मैं तो भूल गया, लेकिन मेरे को पता चला कि 3 महीने से फॉलो हो रहे हैं। मैंने 3 महीने उनके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया, तो मेरे को पीछे से पता था कि भाई फॉलो कौन कर रहा है। मेरे को तो ऐसा लगता था कि भाई ये तो स्किप ही हो गए होंगे। बट नहीं, जब मैंने 3 महीने बाद रिपोर्ट्स निकलवाई देखी तो मेरे को पता चला कि यस दीज ऑल टास्क आर डन एक्टिवली ऑन अ डेली बेसिस, एंड दिस वाज रियली गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। इसके बाद में भी एक और चीज हुई कि जब मैंने किसी दूसरे एम्प्लॉय को मान लो ऐड करने की कोशिश करी कि भाई ये एम्प्लॉय छोड़ रहे हैं, नया एम्प्लॉय आ रहा है, तो उनको जस्ट लॉगिन आईडी पासवर्ड देना कि नाउ यू हैव टू स्टार्ट दी वर्क फ्रॉम हियर इटसेल्फ। उसको अलग से आकर के बताना नहीं है कि भाई तुमको करना क्या है। अदरवाइज एक जो मैनेजर होते हैं, सीनियर मैनेजर होते हैं, उनका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है इस चीज में कि कोई नया एम्प्लॉय आया है, अब उसको बताना पड़ेगा कि भाई आज तेरे को बैठ करके ये काम करने हैं चार। वो काम हमें बताने नहीं पड़ते। तो ये एक और अच्छा हमको अनुभव था। देखिए क्या होता है कि मुझे ये लगता है एज एन एंटरप्रेन्योर कि आपको अपने कस्टमर को तो सेलिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है, पर जो आपकी एम्प्लॉयज हैं वो भी आपके कस्टमर हैं, राइट? डेफिनेट। तो आपको उनको सिस्टम्स और प्रोसेसेस की मार्केटिंग करके यूज करवाना पड़ेगा कि भाई ये बेस्ट चीज है, उसको यूज करो तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। और आज करेक्ट। के टाइम पे अगर आपने एम्प्लॉयज को राइट टूल्स की मार्केटिंग कर दी और वो यूज करना शुरू कर दें, तो बिजनेस आपका एक्सपोनेंशियली उसमें ग्रो हो सकता है। तो इसमें पर्सनल लाइफ में क्या इम्पैक्ट आया है पीयूष, बिफोर
टास्क डेलीगेशन इम्प्लीमेंटेशन एंड आफ्टर टास्क डेलीगेशन, पर्सनल लाइफ में बताइए कुछ। सर पर्सनल लाइफ में तो यही था मेरे को सबसे बड़ा बेनिफिट, तो कि भाई मैं जिन टास्क को भूल गया था उन टास्क को यदि मैं देखता था कि भाई ये पूरी नहीं हुई तो मेरे को स्ट्रेस होता था कि भाई ये फंस गए अपन, इन टास्क के लिए अपन को कोई बंदा रखना चाहिए था एंड ऑल, फॉलोअप्स के लिए कोई नहीं है व्यक्ति पीछे से, क्योंकि सर सारे काम नहीं कर सकते। आप जैसे बोलते हो चीफ फॉलोइंग ऑफिसर बोला करते हैं, तो केवल चीफ फॉलोइंग ऑफिसर्स में प्रॉब्लम यही होती है कि भाई वो खुद भी भूल जाते हैं, उनका भी कोई फॉलोअप लेने वाला चाहिए बैकएंड में। तो मेरे को उसकी जरूरत नहीं पड़ी, वो बैकएंड का जो फॉलोअप था वो अपनी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ले रहा था। एंड दिस वाज रियली ए गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरी लाइफ उससे पीसफुल हुई। अदरवाइज मैं स्ट्रेस आउट होता किसी और के ऊपर गुस्सा करता, उससे दो चीजें बिगड़ती, वो बिगड़ी भी नहीं और मेरे जो एम्प्लॉयज के साथ रिलेशंस थे वो भी हैम्पर नहीं हुए। अदरवाइज रेगुलर यदि मेरे को भी फॉलोअप लेना पड़ता है या मेरे को भी डंडा करना पड़ता है, तो उस डंडे करने के चक्कर में वो बंदा नाराज होकर बैठ जाता है कि यू आर पॉकिंग मी रेगुलर बेसिस। तो वो अच्छा, एक रिलेशंस भी मेरे खराब नहीं हुए उनके साथ। ऑडियंस ये भी जानना चाहती है कि मतलब आप बस बोल ही रहे हैं, फिर आपका यूसेज भी है एप्लीकेशन का। तो अगर आप एक बार शेयर स्क्रीन करके एक बार कुछ नंबर्स दिखाएं, जैसे लास्ट मंथ की बात करें, तो अगर आप इफ यू कैन शेयर द स्क्रीन एंड शो केस कि भाई लास्ट मंथ में आपके कंपनी में कितने टास्क कंप्लीट हुए, आपके टॉप 5 परफॉर्मर्स कौन है, और मुझे ये भी जानना है कि आपका फेवरेट डिपार्टमेंट कौन सा है, बिकॉज हर एंटरप्रेन्योर का एक फेवरेट डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे वो चाहता है यार कि और सब कुछ चलता रहे, बस मैं इस पे लगा। तो एक बार पहले आप स्क्रीन शेयर करके कुछ रिजल्ट्स दिखाइए कि यार इतने टास्क अब हमारे चल रहे हैं। बिकॉज यूजुअली एंटरप्रेन्योर्स को लगता है कि 100 200 500 टास्क कंप्लीट हो रहे होंगे पर मंथ, बट आपके केस में क्या अभी सिनेरियो? Let me show you. So these are the tasks which we did in the last month. So there were around 18 okay, 8,985 8,985 tasks are completed, in the last month. and 100 were only, voting and 1,500 were delayed. ओ माय गॉड, मुझे एक चीज बताइए, इससे पहले आप क्या यूज कर रहे थे? सर इसके पहले हम लोग करते थे गूगल शीट। अच्छा, जी। तो गूगल शीट में इतना सारा डेटा और वो सब चीजें, क्या इश्यूज आते थे उसमें जो इसमें नहीं आ रहा है? इसमें नहीं आ रहे। मुझे एक चीज बताइए कि गूगल शीट और इसमें क्या डिफरेंस आपको लग रहा है ऐप वाइज? मेजर डिफरेंस तो यही है कि आपको एरर्स फ्री मिलता है ना, एक एनालिटिक्स बहुत आसानी से मिल जाता है। गूगल शीट के अंदर आपका डेटा तो रहेगा, बट डेटा की जो रिपोर्ट्स आपके पास निकल करके आती है उसमें आपको खुद को मेहनत करनी पड़ती है काफी ज्यादा उस डेटा को एनालिसिस करने के लिए। एज कंपेयर टू दिस ऑटोमेशन ऐप, दिस इज प्रोवाइडिंग एस अ वेरी crisp and accurate data for the performance of each and every employee, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है, आपको डिपार्टमेंट की मिल जाएगी तो एम्प्लॉय की नहीं मिलेगी, एम्प्लॉय की मिल जाएगी तो डिपार्टमेंट की नहीं मिलेगी। तो ये यहाँ एक पे आपको एम्प्लॉय वाइज भी दिख रहा है और कैटेगरी वाइज भी दिख रहा है। बिल्कुल कैटेगरी बिल्कुल एम्प्लॉय वाइज कैटेगरी वाइज सब दिखता है यहाँ पर, जिसमें हमको ये भी आइडिया रहता है कि भाई किसने और बेटर करा जा सकता था, फिर तो उनको लेके अकाउंट बैठ। अकाउंट्स डिपार्टमेंट बहुत अच्छा कर रहा है आपका। अकाउंट्स डिपार्टमेंट इज डूइंग वंडर्स, अमेजिंग। तो आपके भी टॉप 5 एम्प्लॉयज कौन से हैं अकॉर्डिंग टू यू, जो जिन्होंने लास्ट मंथ बहुत अच्छा किया है? सर टॉप 5 एम्प्लॉयज़ की मैं बात करूं तो ओवरऑल जो हमारे 5 डिपार्टमेंट्स हैं, मैं एम्प्लॉय वाइज की बजाय मैं डिपार्टमेंट वाइज बात करूंगा, क्योंकि सर एक डिपार्टमेंट के अंदर यदि 10 एम्प्लॉयज़ हैं तो अरे उनका 10 का कंट्रीब्यूशन रहा होगा डेफिनेटली, है बिल्कुल ना। सही, बिल्कुल सही तो बात। डिपार्टमेंट वाइज ही मैं बात करूंगा, जैसे हमारे सेल्स डिपार्टमेंट है और सीआरएम डिपार्टमेंट है और इसके अलावा अकाउंट्स है और हमारा परचेज डिपार्टमेंट है। ये 4 डिपार्टमेंट बेस्ट परफॉर्मर थे, क्योंकि इन चारों डिपार्टमेंट्स की जब रिपोर्ट्स हमारे पास निकल करके आई थी, तो जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन में डेटा दे रखा था कि भाई हमने इस टास्क को इस तरीके से कंप्लीट किया, बहुत बढ़िया। उसमें बहुत अच्छा हमको एनालिसिस मिला, उसमें पता चला कि भाई हाँ और अभी इन्होंने टोटल एक एक कितने टास्क के एम्प्लॉयज ऊपर आप अच्छे से मैनेज कर काम रहे हो किया सर? है। टोटल अभी कितने एम्प्लॉयज आप मैनेज कर रहे हैं इसमें? सर इस पे अभी मैं 20 एम्प्लॉयज़ ही मैनेज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी हमारे टीम मेंबर्स थे सबको टास्क ये ऐप नहीं दिया। जो मेन लीडर्स थे और मेन लीडर्स के नीचे जस्ट जो सबॉर्डिनेट्स थे उनको ये टास्क ऐप पकड़ाया था। राइट 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 राइट। और उसका क्या रिजल्ट निकला? वाज इट अ गुड डिसीजन टू यूज द टास्क डेलीगेशन सिस्टम? इट वॉज क्वाइट बेटर बिकॉज आप यदि मैन्युअली जाते हो तो कहीं ना कहीं फिर आप जाकर के फंस चुके होते हो। ऐप जो होती है वो रिमाइंडर्स भी कंटिन्यूसली डाल देती है, आपको और रिमाइंडर्स भी आपके जो डालने पड़ेंगे, है ना। बाकी एम्प्लॉयज जिनको अभी तक वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली सिस्टम के थ्रू चलने की, उनको कभी कभी फोमो फील होता है कि हमें भी एज अ सिस्टम में आना चाहिए, हमें भी इसके अंडर लेना चाहिए?
सर उन्होंने अभी तक देखा नहीं है, इसलिए तो वो डरते हैं। उनको तो ये लगता है कि पता नहीं अब बॉस क्या लेकर के आए हैं, मेरे गले में एक और फांस डालेंगे। बट हाँ, जिन्होंने यूज कर लिया ना, उन्होंने बोला कि इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। आपने शुरू शुरू में कहा था तो हमें लगा था कि एक नई बीमारी आप लेकर के आए हो, बट नहीं, ये तो हमारे लिए एक अच्छी दवाई थी जो हमारे काम आ गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आई वुड रेकमेंड, इनफैक्ट आने वाले टाइम में आप और चीज़ों को, मतलब और एम्प्लॉयज़ को इसमें ऐड करो, बिकॉज क्या यस होता यस। है कि अपर एम्प्लॉय आपकी एक सर्टन कॉस्ट है, कॉफ़ी, चाय, इंटरनेट, डायरी एंड ऑल, और उसके साथ सैलरी भी एक कॉस्ट है। ठीक है, लेट्स से आप 20,000 दे रहे हैं, साल का 2.5 लाख रुपए दे दिए सैलरी। फिर आपका टाइम भी कॉस्ट है, जो आपका जो मैनेजर है, जो वो आगे किसी को काम दे रहा है, या फिर उसके जो जूनियर है वो आगे किसी को काम दे रहा है, राइट? तो अगर आप सब कैलकुलेट करोगे वर्सेस जब इस सिस्टम के थ्रू जाओगे आप, तो आप देखोगे कि आपकी कंपनी में एक्चुअली लाखों रुपए बच रहे हैं, और साथ साथ में काम भी जल्दी हो रहा है। तो करेक्ट। वो क्या होता है, कई बार लेवल 1 लेवल 2 पर हम दे देते हैं सिस्टम पर, आखिरी लेवल पे देना भी जरूरी है, बिकॉज वहीं से ही रिजल्ट और प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज होती है। करेक्ट। एक एक क्विज मैं आपके साथ यहाँ पे चाहूंगा प्ले करना पीयूष। श्योर। ये 2-3 चीजें आपसे जाननी है। सबसे पहला, आप ई कॉमर्स के अब एक्सपर्ट बन चुके हैं, बिकॉज आप अच्छे से अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं ई कॉमर्स पे, राइट? एंड यू हैव डन अ 20 करोड़ रुपी पर ईयर रेवेन्यू, व्हिच इज इनक्रेडिबल। तो पहला सवाल मेरा आपसे है कि ई कॉमर्स में जो आपका अभी करंट प्रोडक्ट्स हैं, विमेन एथनिक वेयर, अगर ये आप ना करते तो और कौन सा सेकंड प्रोडक्ट है, कौन सी कैटेगरी थी जो आप करना चाहते थे ई कॉमर्स में? सर फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं है ना। मेरे पास इसका जवाब भी नहीं है कि मैं दूसरी चीज क्या करता। बट हाँ, यदि मैं ये नहीं करता तो फिर मैं ये कुछ भी नहीं करता। मैं ओके। कुछ और ही कर रहा होता जहाँ पे मेरे को मतलब कुछ और चीजों में इंटरेस्ट आता है। मैं खेल रहा होता, मैं घूम रहा होता, मैं ये करता। मैं ये नहीं करता तो कुछ ही नहीं करता। हाँ, लेकिन ये जैसे खेलना कूदना हॉबी है, जैसे घूमना हॉबी है, वैसे मेरे लिए ये भी हॉबी है। अब ये हॉबी थी तो मैं इसको परस्यू कर रहा हूँ साथ में, तो मेरे को ये बर्डन नहीं लगता, मेरे को एंजॉयमेंट ही होता है। और ये नहीं कर रहा होता तो फिर मैं नहीं कर रहा होता। और ई कॉमर्स में भी मैं ये नहीं कर रहा होता तो कुछ नहीं कर रहा होता। ओके, ई कॉमर्स के लिए आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं? ई कॉमर्स के लिए सर बहुत सारे हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो। आजकल वेबसाइट से भी होता है, वेबसाइट भी चलाते हैं, हमारा खुद का नेटवर्क है, हमारा खुद का। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, बाय द वे, डू यू नो हमने वीकली क्लासेस भी शुरू कर दी हैं, दैट्स वीकली रियली नाइस। ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग क्लासेस। तो एवरी फ्राइडे आई एम टेकिंग वन क्लास, अभी लास्ट क्लास हुई थी ऑन हाउ टू हायर बेस्ट एम्प्लॉयज। वेरी गुड, वेरी गुड। इंटरनली आप कैसे रेफरल प्रोग्राम चला सकते हो, और बहुत सारे और एरियाज उसमें फोकस किए। अच्छा, अगला सवाल मेरा क्विज का ये है कि मैं आपको 4 फीचर्स बताऊंगा टास्क के आपके, उसमें से बेस्ट फीचर आपको चूज करना है, जो आपको लगता है कि ये सबसे बेस्ट चीज है। ओके, सबसे पहला है व्हाट्सएप नोटिफिकेशन। नंबर 2 इज वॉइस नोट। नंबर 3 इज द रिपीट KRA ऑप्शन। एंड नंबर 4 इज टास्क टेम्पलेट्स। सो मैं यदि प्रायोरिटी वाइज बात करूं तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो जाएगी हमारी इसको, जो आपने थर्ड ऑप्शन दिया था, रिपीट रिपीट किया है। KRA। अच्छा, वो रिपीट आपका किया है, फेवरेट है? हाँ वो क्यों है, फेवरेट। क्यों है वो फेवरेट? रिपीट किया है इसलिए फेवरेट है क्योंकि रिपीटेशन इजीली हो जाता है वहां पर, है ना। अदरवाइज फिर वो एक टास्क बन जाती है अपने आप में कि भाई इसको प्रोसेस करो। और दूसरा मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, क्योंकि व्हाट्सएप नोटिफिकेशन हर कोई व्हाट्सएप यूज करता ही है। और लोगों को जैसे सांस लेने की आदत हो गई, वैसे व्हाट्सएप चलाने की आदत हो गई। अब लोग सांस भी लेते हैं, व्हाट्सएप भी साथ में चलाते हैं, तो व्हाट्सएप देखे बिना रहते नहीं है। एसएमएस के लिए तो बहाना होता था कि सर नहीं देखा, भूल गए। व्हाट्सएप को वो कोई नहीं भूलता, उनको पता है कि मैं लाइव तो था, लाइव था तो मेरे को ये भी देखना था। और वो नोटिफिकेशन के रूप में सामने जाता है तो उनको आइडिया लग जाता है कि हाँ आई हैव टू डू दिस। और वो टास्क सामने होती है तो फिर वो कंप्लीट भी करते हैं उसको। बहुत बढ़िया, बहुत फिर बढ़िया। सो साथ में वो एक और चीज खास करता है व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, वो ये है कि भाई 1 घंटा बाकी है, अभी कंप्लीट करो तो कर लो, नहीं करो तो फिर लाल मार्क, रेड मार्क लग जाएगा तुम्हारी रिपोर्ट में, रिपोर्ट खराब हो जाएगी। ओके, कुछ और नंबर्स की बात करते हैं, एंड आई वुड नीड सम एस्टिमेट्स। ओके, अभी आपने बोला कि 20 एम्प्लॉयज हैं, और उनमें से आप भी एक एम्प्लॉय हो कंपनी के जो इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो, एम आई राइट? तो आपका पर्सनली, बिकॉज ऑफ टास्क डेलीगेशन, आपका पर्सनली कितना टाइम बचने लग गया है पर डे इन फॉलो अप्स एंड रनिंग आफ्टर टीममेट्स एंड चेकिंग की क्या चल रहा है? मैं पर्सनली बात करूं तो मेरा डेफिनेटली टाइम बचने लग गया, क्योंकि फॉलोअप्स वाज रियली अ हेक्टिक टास्क। कितने कितने घंटे बचने लग गए? 1.5 से 2 घंटे बचते ही हैं, है ना। 1.5 से 2 घंटे मेरे को देने ही पड़ते थे अलग अलग तरीके से फॉलोअप्स लेने में।
वो और एक आपके ओवरऑल जो 20 एम्प्लॉयज हैं, अगर इनका भी टाइम की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि इनका भी कितना पर डे टाइम बच रहा होगा कि वर्बली आपको बताने में उसके सिस्टम के थ्रू उनको रिमाइंडर जा रहे हैं और बार बार नहीं उनको बोलना पड़ रहा है? या फिर प्रोडक्टिविटी की इंक्रीमेंट की बात कर लेते हैं कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो यूज कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी इंक्रीज हुई होगी आपके हिसाब से? प्रोडक्टिविटी इज डेफिनेटली इंक्रीज, क्योंकि मैंने ये फिगर्स में देखा था। जैसे मेरा लास्ट से लास्ट मंथ का मैं टर्नओवर की बात करूं, इट वाज अराउंड 1.5 सीआर एंड इन द सो वाह। आप इम्प्रेस्ड बाय द परफॉर्मेंस, बिकॉज ये परफॉर्मेंस वैसे ही सुधरी थी जैसे सुधरनी चाहिए थी। जो सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस थे उन पे और अच्छे से काम करना था, और वो काम वहां से हो रहा था, रिजल्ट के रूप में निकल करके आ रहा था। और मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ आपकी ऐप को यूज़ करते हैं, मेरे को 3 महीने हुए हैं मैक्सिमम। 3 महीने के अराउंड मेरे को ये रिजल्ट दिखा है, तो इट इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। और साथ साथ में मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम भी बचा है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बची है, वो ये कि हर एम्प्लॉय अलग अलग माइंडसेट का होता है। कुछ एम्प्लॉयज गूगल शीट के ऊपर भी एक्टिवली फॉलोअप ले लेते थे, उनको जो हमने तरीका बताया था गूगल शीट पे काम करने का तो वो कर लेते थे। कुछ एम्प्लॉयज के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो जैसे पिछले दिन का कंप्लीट किया था उसी को वैसा रखने देते थे, उसमें एडिट वेडिट कुछ नहीं करते थे। वो अपने उसी को, जैसे हमने क्या मेथड लगा रखा था, हमने मेथड लगा रखा था कि भाई आपको गूगल शीट दे दी, उसमें बहुत सारे आपके टास्क लिखे हुए हैं। उन टास्क को आप जैसे जैसे कंप्लीट करते जा रहे हो, उनके बॉक्सेस को जो कलर करते जाओ, तो वो कलर करते ही नहीं थे। आज वाला कलर कर दिया, कल वाला करा ही नहीं। अब वो कल वाला ये करा क्या नहीं तो होता कल है, को हमने जाकर के नोटिस। बॉय अपना काम करे वही बहुत बड़ी बात है। तो अब वो कलरिंग कराओगे और 10 चीजें कराओगे तो वो कंफ्यूज हो जाता है। तो गूगल वही। शीट में इवेंचुअली थोड़ी थोड़ी चीजें स्लो भी हो जाती हैं शीट हाँ। वाइज। राइट, तो उसका और इसके एक्सपीरियंस में, जैसे इसमें मोबाइल ऐप है उसमें मोबाइल ऐप नहीं था, तो अभी एम्प्लॉयज क्या बोलते हैं कि क्या चीज़ बेटर थी, गूगल शीट में मैनेज करना है या फिर इसमें बेटर? डेफिनेटली आपकी ऐप में मैनेज करना बहुत आसान है ना। जिनके पास डेस्कटॉप है उनको हमने डेस्कटॉप एक्सेस दे रखा है, जिनके पास मोबाइल्स है उनको मोबाइल एक्सेस दे रखा है। और दोनों का हमारे को अच्छा फीडबैक मिला है कि भाई मोबाइल ऐप भी काफ़ी अच्छी है और डेस्कटॉप वर्जन है वो भी काफ़ी अच्छा है। और सबसे खास बात मैं आपको बताऊंगा, आपका कमेंडेबल सपोर्ट है। सपोर्ट में मेरे को शायद ऋतिक का नंबर है मेरे पास, तो जब जब जरूरत पड़ती है वी टॉक टू हिम और उनको बता देते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो वो उसको प्रायोरिटी पर रिजॉल्व भी करवाता है। पीयूष, बहुत मज़ा आ रहा है इस डिस्कशन में, एंड आई थिंक बहुत ही कम रेयर कुछ एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो एक छोटे से शहर से आ रहे हैं और एक बिजनेस को होलसेल से ई कॉमर्स में कन्वर्ट करना, अपनी फैमिली को उस चीज़ के लिए कन्विंस करना, राइट, और मतलब प्रैक्टिकली जीरो से शुरू करना बिजनेस। मतलब मैं तो बोलता हूँ कि एक बिजनेस जीरो से खड़ा करना और एक बिजनेस जो ऑलरेडी खड़ा है और कॉम्प्लिकेटेड है उसको स्ट्रीमलाइन करना, मुझे लगता है इज मोर डिफिकल्ट देन स्टार्टिंग समथिंग फ्रॉम स्क्रैच। मतलब एक चीज बिगड़ी हुई है, उसमें हालत खराब है, कॉम्प्लिकेटेड है, लाखों की उधारी है, माइंडसेट चेंज नहीं हो पा रहा है, उसको कन्वर्ट करना इज मच मोर डिफिकल्ट। तो ये 1 करोड़ से 20 करोड़ के रेवेन्यू में अगर मैं आपको बोलूं कि 3 चीजें आप बताइए, कौन सी 3 चीजें जो आपको लगता है कि यार ये चीज थी बिकॉज ऑफ विच ये स्केलेबिलिटी आई है? कोई 3 सीक्रेट्स, और ये मतलब इट शुड बी वन वर्ड, एक वर्ड के 3 आपको एरियाज बताने हैं। देखिए, हमने जब ऑनलाइन ये चालू किया था केसीपीसी, ये सच में एक पौधा था, छोटा सा पौधा था हमारे लिए। और हमें ये भी पता है कि ये 20 करोड़ से 2000 करोड़ पहुंचने वाला है। ज्यादा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 7-8 साल का टाइम है इसमें, इससे ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। ये जो ग्रोथ आएगी 20 करोड़ से 2000 करोड़, बहुत इंटरेस्टिंग फेयर आपने बोला, बिकॉज स्टार्टिंग में मैंने आपकी विजन की बात की थी तो आपने बोला कि अभी कुछ विजन नहीं है, बट अब डिस्कशन कर रहे हैं तो आपके अंदर की जो चाहत है वह निकल के आ रही है कि 2000 करोड़ का बिजनेस बिल्ड करना है। अभी जितने एम्प्लॉयज हैं 2000 करोड़ में कितने आपको लगता है मिनिमम इतने एम्प्लॉयज तो टेक्निकली मतलब रखने ही पड़ेंगे? सर अराउंड अराउंड 1500 से 2500 का फिगर है। और बाकी तो टेक्नोलॉजी किस टाइप की आती है, जैसे एआई आ गया या और आ गया, तो तब का पता नहीं है। बाकी 1500 से 2500 तो मिनिमम रखने ही पड़ेंगे हमारे इंडस्ट्री के हिसाब से। और अब बिकॉज ऑफ अब टास्क एलिगेशन आया है, लास्ट मंथ 7,500 टास्क कंप्लीट हुए हैं, तो अब वो कॉन्फिडेंस आता है कि अगर इवन 200-400 एम्प्लॉयज रखने पड़े, 500 रखने पड़े, तो हमारे पास बैकअप में ऐसा सिस्टम है जिससे ऑटोमेटेड ह्यूमन कंसिस्टेंसी क्रिएट हो गई। क्या लगता है उसको? मैं बताता हूँ सर, जो आपने अभी टास्क टेम्पलेट करके जो एक फीचर ऐड किया है, उससे बहुत फायदा होएगा। क्योंकि हर एम्प्लॉय ऐसा तो नहीं है कि अलग रोल के लिए आएगा। जब हम्म। आप कंपनी बड़ी करोगे तो एक डिपार्टमेंट के अंदर एक ही टाइप के रोल के बहुत सारे एम्प्लॉयज आएंगे। तो अब एक एक को आप इंडिविजुअली टास्क असाइन करो, उसकी जगह आपने नंबर फिगर रखे कि भाई ये टेम्पलेट आईडी है, ये टेम्पलेट आईडी है, ये 20 टेम्पलेट आईडी है, ये इस रोल के लिए असाइंड है, तो वो जैसे ही ज्वाइन करेगा उसको 20 टेम्पलेट आईडी असाइन कर दो। वो सबसे इजी काम है।
उससे हमको बेनिफिट यही मिलने वाला है कि भाई आपको जब एचआर के लिए भी लोड कम हो गया, क्योंकि एचआर के ऊपर एक हेडेक रहता है कि भाई अब आप इसका पूरा कंप्लीट जो टास्क है वो बना करके असाइन करो, वो एक दो दिन लगाता, उसकी जगह उसको मुश्किल से 5 मिनट लगेगी वो टास्क नंबर लिखे हुए हैं उठा के उसको असाइन करना है, उसको ऐड करना है। तो ये सबसे इजी प्रोसेस होने वाला है, और डेफिनेटली ये जब 1500 2000 तक जाने वाला है तो उस दिन ये बहुत काम आएगा, बहुत ही बहुत ज्यादा काम आएगा। बहुत बढ़िया। सो पीयूष, आपका क्या मैसेज है उन सब बिजनेस ओनर्स के लिए जो भी आपको सुन रहे हैं? सिस्टम्स और प्रोसेसेस की कितनी वैल्यू है किसी बिजनेस में, कुछ उसके बारे में बोलना चाहेंगे? मैं तो एक ही चीज सीखा हूँ केवल भाई, कि हमें पहले से कुछ बिजनेस आता था, ये हमारी स्ट्रेंथ नहीं थी, ये वीकनेस थी। वीकनेस इसलिए थी क्योंकि हमें लगता था कि हमें आता है, हम्म। और ये एक बॉटलनेक बन गया इस चीज में कि हमें सीखना है। हमने सीखने को छोड़ दिया था और हमको ये लगने लग गया था कि नहीं हमको तो आता है पहले से, हमें क्या सिखाएंगे, हम तो जन्म जन्मे जन्मे हुए एमबीए हैं। और उसका नुकसान हमें मिला था, हम लोग कई साल पीछे हो गए जहां पर हम सीख करके करते उसके उसके मुकाबले। और जब सीखना शुरू किया तब पता चला कि ये पहले सीख लिया होता तो अभी जितना 2 साल का गैप रहा उसमें और कमेंडेबल परफॉर्मेंस आ सकती थी। तो मैं तो 90%, यदि आप बोलो कि 90% मैं इसको ना तवज्जो देना चाहूंगा कि सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस आर मस्ट इन एवरी बिजनेस। हाँ, आपको एक दो, मतलब आपको ठीक है कि अपनी नॉर्मल लाइफ जीनी है जिसमें ज्यादा प्रेशर नहीं है, छोटा सा काम है, छोटा काम है, छोटे परिवार है और चला रहे हैं अपन, वहां पर चलाओ ना, उसको कोई मना नहीं करेगा। लेकिन आपको यदि एक विजन लेना है बिजनेस के लिए कि भाई मेरे बिजनेस को वहां पे लेके जाना है, तो वो सबसे पहली जो चीज होगी वो ये होगी कि आपको सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस लानी पड़ेगी बिजनेस में। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और आपको अपडेट दे दूं, अभी इस साल हमने एक दो दो दिन का एक बिजनेस ऑटोमेशन समिट किया था, जिसमें इस बार मिस्टर संजीव बिखचंदानी हमारे हम्म। चीफ गेस्ट थे, जिन्होंने बिजनेस को स्क्रैच से शुरू किया था। एंड अभी हिज कंपनी, वन ऑफ द कंपनी जिनके अब सीईओ अलग हैं, Naukri.com, आई थिंक अराउंड 2,500 करोड़ का टर्नओवर उस कंपनी का हुआ है। एंड he founded co-founded जीवन साथी एंड देन 99 acres एंड मल्टीपल अदर कंपनीज इज वेल। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा कि मतलब 1 करोड़ से 100 करोड़ और 100 करोड़ से 1,000 करोड़ की जर्नी में सबसे मेन इंटरेस्टिंग चीज होती है आरपीयू, रिपीटेबल प्रॉफिटेबल यूनिट। तो अगर कोई बिजनेस अपना रिपीटेबल प्रॉफिटेबल यूनिट डिस्कवर कर ले और फिर मेक श्योर करे कि बैकएंड पे जितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है सिस्टम्स ऑटोमेशन पे लगाए, उसमें कंजूसी ना करे, और उस पैरेलली उस आरपीयू को स्केल करे, तो आपका बिजनेस हजारों करोड़ों में भी जा सकता है। तो नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली। भी हमारा समिट आ रहा है और ये गुड़गांव में ही होगा। और आई डोंट नो इस साल तो आपने शायद अटेंड नहीं किया, बट नेक्स्ट ईयर आपको हाँ। आना ही आना है उस समिट में, और अपने एक दो टीममेट्स को जरूर लेके आना है उस समय। डेफिनेटली। Done great. It was really nice meeting you, Mr. Piyush, and KCPC brand को all the best. एंड ऐसे ही अपने बिजनेस को ग्रो करते रहिए और अपने एम्प्लॉयज़ को राइट सिस्टम्स और राइट टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते रहिए, बिकॉज वहीं से ही 1 करोड़ से 20 और 20 करोड़ से आपका 100 करोड़ होगा। जब बिजनेस ओनर बात करता है प्रॉफिट की, तो वहाँ पे एक सबसे बड़ी एरिया होता है, वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट। मुझे लगता है कि अगर आप सारा पैसा प्रॉफिट में रखोगे तो वो कोई बेनिफिट नहीं है उसका, बिकॉज एट करेक्ट। द एंड आपके बेसिक नीड अगर फुलफिल हो रही है और अगर आपके पास एक विजन है, तो यू नीड टू इन्वेस्ट गुड अमाउंट ऑफ मनी इन रिसर्च सिस्टम्स ऑटोमेशन एम्प्लॉयज, और वहाँ से जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आती है वो एक अलग लेवल की ग्रोथ है। कई बार क्या होता है कि हमारी बिजनेस की कैपेबिलिटी होती है 100 करोड़ या 200 करोड़ अट्रैक्ट करना, राइट, बट हम रियलाइज नहीं करते कि हम उस लेवल पे जा सकते हैं, राइट। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द व्हीकल गेम। मतलब आपके पास अगर आधा घंटा है, अगर आप साइकिल चलाएंगे तो 5 किलोमीटर चल लेंगे, वही आधे घंटे में कार चलाएंगे तो 50 किलोमीटर चले जाएंगे, वही आधे घंटे में आप एरोप्लेन पे होंगे तो कम से कम 200 किलोमीटर आप जा सकते हैं, 300 किलोमीटर जा सकते हैं। तो वो ऑटोमेशन में ऑब्वियसली साइकिल से कार में इन्वेस्टमेंट तो लगेगा, और उससे जो स्पीड आएगी, उससे जो टर्नओवर रेवेन्यू प्रॉफिट आएगा, वो कम से कम 100 गुना होगा एज कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट। तो यही है आपको। केवल मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, हम्म। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विच वी आर मिसिंग। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोग हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करते हैं। ये जो इंडिया का टाइम चल रहा है ना, ये टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये टाइम इंडिया में वापस शायद नहीं आएगा अभी आने वाले 100 साल बाद में, आ जाए तो पता नहीं है। बट अभी इस जो 5 7 10 साल चल रहे हैं ना, इसमें आएगा तो आएगा, इसमें आपको जितने मजे लेने हैं उतने ले लो। अब जो सबसे मेन चीज जो मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये कि भाई यदि आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी ना, तो उसका नुकसान ये जो आप थोड़े से रुपए बचाने में लगा रहे हो,
इससे 1000 गुना ज़्यादा होगा। तो R&D के ऊपर, लर्निंग के ऊपर और ये बिजनेस ऑटोमेशन का जैसे आपका टूल है, इनके ऊपर डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आप एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिस कर गए, जो आपके लिए तैयार खड़ी थी, प्लेट सजाई हुई थी कि बस आपको खाना था, बट आपने खाया नहीं और आपने मिस कर दिया। Done. So this was Piyush sharing his learnings of his life. An e-commerce entrepreneur who had no e-commerce background but ended up creating a 20 crore revenue per year company. We wish him all the best, and we wish that Thank his revenue and his company grow to 2000 crore a year and become the biggest brand in his category. And automate business की हमेशा आपको support रहेगी हमारे आगे आने वाले टाइम में। CRM, ऑटोमेट सपोर्ट, ऑटोमेट प्रोजेक्ट्स, ऑटोमेट कोटेशन, ऑटोमेट फॉर्म्स, बड़े ही इनोवेटिव सॉल्यूशंस आने वाले हैं। तो लेट्स कंटिन्यू दिस जर्नी टुगेदर, और जहां जहां पे आपको हेल्प लगेगी, वी आर देयर टू हेल्प यू टेक्नोलॉजी वाइज, सिस्टम वाइज। थैंक यू सो मच। you so much. Thank you. Audience, I hope you enjoyed this video. Please share it with other avid entrepreneurs and tell us in the comment box what was the biggest takeaway from today's video by learning from Piyush Agrawal, founder of KCBC. Thank you so much.